Assalamu alaikum everyone. Welcome to AMP's free online career guidance seminar phase 2. Now let's have a look at what AMP is about and how you can contribute towards it as well as receive from it. AMP stands for Association of Muslim Professionals, where our motto is striving for peace and progress. AMP is registered in India, USA, UK, and Australia as a non-profit organization. AMP has completed its 12 years serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. AMP's mission to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. AMP's vision to be a model community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. The achievements of AMP: school development programs, where we have given 2,800 plus skill development lectures, connected with 800 plus schools, where 281,000 students have been benefited so far. We also do conduct teacher training and parenting workshops. Next is our employment assistance cells. 360 plus job fairs and drives have been given, which has helped 21,000 plus candidates in getting employment. We also provide 200 employability trainings for around 220 plus, and 17,000 plus degree students have benefited from these trainings. Scholarship and self-employment. We have provided 800 plus higher education scholarships, helped 860 plus in orphans education, and transformed families by offering self-employment assistance. Next is our AMP Resource Center, where we have 660 plus career counselors, where we have counseled 2,500 plus students, and we have documents of career guidance and career chart distribution. AMP has also partnered and awarded many NGOs, where 380 plus renowned educationists were connected and awarded, 50 plus partners for skill training and job fairs, including the state government, and we have 100 plus partner NGOs for various programs. The new digital initiatives by AMP. AMP has recently launched indiazakat.com, the indiamentors.com, and ampowerjobs.com. Indiazakat.com is India's first zakat crowdfunding platform floated by the AMP with a view to bring the zakat seekers and the zakat givers on a unified platform. Its objective is to undertake its operations purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of the needy and the distressed people. The indiamentors.com strives for the development of a vibrant and progressive student and young professional community in India. The indiamentors.com envisions a fully educated and empowered student community, where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. ampowerjobs.com is a job portal free for job seekers with comprehensive offerings including skill training and employability training programs. ampowerjobs.com has been specially created by the industry professionals voluntarily for the sake of freshers and those affected by the COVID-19 pandemic. AMP has an on-ground presence of 140 plus active chapters which are spread across 26 states, and we also have a presence in 16 countries with around 6,000 plus active members. Coming to the online presence, we have around 1,25,000 plus members and professionals connected to various social media. To join AMP, visit ampindia.org/joinamp. Our host for the day is Professor Javed Iqbal. He is the chairman in the Department of Foreign Languages, also a chairman and department in the Department of West Asian Studies, as well as a chairman in the Department of South African and Brazilian Studies, FIS AMU.
Professor Javed sir, very heartily welcome you to the AMP's webinar. Over to you, sir. Thank you. First and foremost, I would like to thank the Association of Muslim Professionals for reaching out to me and giving me an opportunity to speak to its. Before we go into the topic career prospects of foreign languages in India, I would like to share with the audience my own personal experiences as far as foreign languages are concerned. In fact, this is a field which is not very well known. इंडिया में foreign languages का पढ़ाई अभी भी it has not picked up जैसे होना चाहिए था. Normally, students opt for engineering, medicine, और यानी तो commerce इस type के background से. I got to know about foreign languages for the first time when I went for my higher studies in JNU, New Delhi, in the 90s. तो वहाँ पे पहली बार मैं देखा कि एक फैकल्टी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है, वेयर जर्मन, चाइनीज, जापानीज, रशियन, फ्रेंच, कोरियन, हिब्रू एक्सेट्रा आर बीइंग टॉट. तो मैं तो एकदम पहले से आई बिलोंग टू उड़ीसा एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन. तो नॉर्मली इंडिया में स्मॉल टाउन्स में फॉरेन लैंग्वेज के बारे में कोई जानता ही नहीं है, कोई बात भी नहीं करता है. Foreign languages have even today they are confined basically to metropolis or to state capitals. So there I saw that oh fine, so one can also pursue foreign languages as a career option. अगर कोई चाहे तो career option इसको अपना बना सकता है, apart from जो traditional careers है medicine में, engineering में या sciences में. So there I saw that people come and join after their plus two के बाद ही join करते थे, and then they spend the next 5 years learning one particular foreign languages or sometimes two foreign languages, which one was the main language and the second was the optional language. So apart from in the 90s there were only two universities in India which used to impart foreign languages as a specialized option. One was JNU, the other was Central Institute of Foreign Languages, जो बाद में English and Foreign Languages University बन गया in Hyderabad. But as the country started liberalizing, economic liberalization होने लगा, then we had multinational corporations coming into India. Then we had this entire concept of call centers, people going and working in call centers. IT revolution आने लगा. तो एकदम से foreign languages का importance during the 90s and early 2000, foreign languages का importance बढ़ने लगा. Suddenly, we see lot of people going in for learning foreign languages because एक तो job prospects बहुत अच्छा था और आज भी बहुत अच्छा है. Nobody remains unemployed as far as foreign languages are concerned. ठीक है, इसमें यह है कि आप it depends on the choice and it depends on your abilities. कौन से फॉरेन लैंग्वेज का आप चॉइस करते हैं. कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस ऐसे हैं कि आप ग्रेजुएशन करते ही यू स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स ऑफ मेनी ऑफर्स ऑफ वेरी हाई पेइंग जॉब्स. फॉर इंस्टेंस जापानीज है, चाइनीज है, जो लैंग्वेजेस आजकल बहुत डोमिनेंट है ग्लोबल ट्रेड में. अपार्ट फ्रॉम जापानीज एंड चाइनीज यू हैव कोरियन ऑल्सो विच हैज वेरी गुड जॉब प्रोस्पेक्ट्स. अदर देन दीज थ्री फॉरेन लैंग्वेजेस, आपके जो ट्रेडिशनल फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जर्मन, फ्रेंच, Spanish, these also have very good prospects, but इनका prospect हो सकता है थोड़ा बहुत Japanese से या Korean से या Chinese से कम हो. But given the fact that foreign languages इतना अच्छा एक growing field है, then many other universities also started adopting this language courses. So when after completing my studies, when I joined Aligarh Muslim University, मेरा शुरू से ये एफर्ट रहा कि यहाँ पे भी एक फॉरेन लैंग्वेजेस का स्टडी स्टार्ट किया जाए. यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस था बट इट वाज इन द साइड लाइन्स. एक सर्टिफिकेट कोर्स फ्रेंच में एक चलाया जाता था और एक स्पेनिश में चलाया जाता था. तो आई वांटेड दैट अ फुल फ्लेज्ड फॉरेन लैंग्वेज कोर्स शुड स्टार्ट इन AMU ऑन द पैटर्न ऑफ JNU. तो फाइनली वी सक्सीडेड एंड इन 2010 we started the Faculty of International Studies, wherein the Department of Foreign Languages started imparting degree courses in 5 foreign languages: French,
German, Russian, Spanish, and one more language. Initially हम लोग जो थे we started imparting BA degree, and later on we also started giving MA degree. तो फॉरेन लैंग्वेजेस की जो पढ़ाई है इसके लिए यू डोंट नीड टू हैव एनी बैकग्राउंड इन द कंसर्न लैंग्वेज। ये नहीं कि आप स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, +2 करके आ रहे हैं और आपको फ्रेंच जानना चाहिए या आपको जर्मन जानना चाहिए या चाइनीज जानना चाहिए। नो, यू डोंट नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ प्रायर नॉलेज। जो एंट्रेंस होता है दैट एंट्रेंस इज बेस्ड ऑन थोड़ा बहुत इंग्लिश का आपका कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होता है, थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एबिलिटी का टेस्ट होता है, थोड़ा बहुत मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है एंड जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपका सिलेक्शन होता है बीए कोर्स में। दिस इज द पैटर्न विच इज फॉलोड इन ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज विच आर नाउ ऑफरिंग बीए कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेजेस। जैसे अब एमयू के बाद तो बीएचयू ने भी स्टार्ट कर दिया है। आपके वहाँ मुंबई के पास आपका गोवा यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एमईटी ऑफर करने लगा है। बैंगलोर में भी फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, इवन मेनी एम्बेसीज दे आर ऑल्सो रनिंग फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज। जैसे अलायंस फ्रैंको है, जो एम्बेसी ऑफ फ्रांस उसको रन करता है, दे ऑल्सो ऑफर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज। जर्मन एम्बेसी ऑल्सो ऑफर्स certificate and diploma courses. Spanish embassy offers certificate and diploma courses. But in order to avail the courses offered by these embassies, you need to be placed or you need to be situated or located in the metropolis, क्योंकि इन लोग छोटे छोटे शहरों में ऑफर नहीं करते हैं। और जहाँ तक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के सवाल है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन हो जाए एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं एंड दे आर अफोर्डेबल। क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट accessing education for the socially backward communities, accessibility is an important factor. Private universities में तो courses आपको मिल जाएंगे, लेकिन they are very expensive. They are maybe 20 times, 30 times more expensive than what we are offering in suppose AMU or JNU or BHU. Okay, so my advice to all students who want to take up foreign languages, first try to for state universities. अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाता आपका एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट देन गो इन फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। नाउ द सेकंड थिंग इज आफ्टर यू टेक एडमिशन, सपोज ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन हो गया, सपोज यू हैव टेकन एडमिशन इन फ्रेंच और यू हैव टेकन एडमिशन इन जर्मन और जापानीज। सो एक तो एग्जिट पॉइंट आपका आफ्टर 3 years है, ग्रेजुएशन आपका हो गया, उसके बाद मेनी कैंपसेस दे हैव प्लेसमेंट स्कीम्स, तो बाहर से कंपनियां आती हैं, रिक्रूटमेंट हो जाता है, यू कैन गो अहेड एंड टेक अप जॉब्स। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर दोस्त फॉरेन लैंग्वेज लाइक चाइनीज, जापानीज, जिसका बहुत शॉर्टेज है इंडिया में। आज तो ऐसा हालात है ना कि चाइना, जापान, कोरिया, दीज आर द कंट्रीज विच आर फॉर्जिंग अहेड इकोनॉमिकली, जिनके कंपनीज आपको हर कंट्री में मिल जाएंगे। सो दे रिक्वायर पीपल इन इंडिया to manage their business in India. तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ग्रेजुएशन के बाद टू गो अहेड एंड टेक अप जॉब्स। लेकिन इफ सपोजिंग यू वांट टू कंटिन्यू विथ योर स्टडीज फर्दर, तो बेहतर ये है कि आप मास्टर्स डिग्री परस्यू करें। मास्टर्स डिग्री परस्यू करें इन द सेंस कि अगर आप मास्टर्स डिग्री हो जाता है देन यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजिशन। ओके, जो आपको ग्रेजुएशन, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज ग्रेजुएट्स दोज हु ऑप्ट आफ्टर ग्रेजुएशन टू टेक अप अ जॉब, दे नॉर्मली जो सैलरी रेंज उनको मिलता है इट इज 50 to 60,000 पर मंथ। बट दोज हु गोइंग फॉर मास्टर्स डिग्री, उसके बाद 2 years का होता है मास्टर्स डिग्री, आफ्टर दैट दे आर इन अ वेरी गुड बार्गेनिंग पोजिशन। दैट सेम जॉब दे ज्वाइन फॉर maybe more than 1 lakh per month के salary पे। So this is the opportunity which is provided by pursuing courses in foreign languages। और जहाँ तक सैलरी का बात है, हो सकता है थोड़ा जर्मन या फ्रेंच या स्पेनिश में थोड़ा बहुत कम सैलरी मिले, लेकिन
As far as scope is concerned, what we have seen during the past 10 years since we have started this program, no one remains unemployed. सबको job मिल जाता है either after graduation or after post graduation. So it depends on what you aim to do in life, what kind of job interests you, and it's not just these multinational corporations who are willing to recruit. There are plenty of opportunities and at different levels of your education. So coming back to today's topic, career prospects in foreign languages. The first and foremost जो career आपको opportunity मिलता है वो है translator interpreters. And these translators, interpreters, it can be either in private sector, in multinational corporations, or it can be in the cabinet secretariat, it can be in the intelligence bureau, or it can be in the Ministry of External Affairs. ये हर साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ग्रुप बी के पोजीशन निकालते। ग्रुप बी इज जो सिविल सर्विसेज है ना, सिविल सर्विसेज में दो कैटेगरी होते हैं। एक है ग्रुप ए जिसमें आईएएस, इनकम टैक्स, कस्टम्स, ये सब अधिकारी का नियुक्ति होता है, एंड ग्रुप बी है उसके नीचे वाले पोजीशन, विच इज ऑल्सो इक्वली गुड। सो ग्रुप बी में बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का पोजीशन हर साल एडवर्टाइज होता है, and they are recruited through competitive exams. Okay, and once we join the group A, with the passage of time 8 साल 10 साल के बाद आप लोग को ऑटोमेटिकली फिर प्रमोशन मिल जाता है, तो आप फिर ग्रुप बी से ग्रुप ए में आपका एडवांसमेंट हो जाता है। अच्छा, apart from translators and interpreters in cabinet secretariat, intelligence bureau and ministry of external affairs, the second career option जो मिल सकता है आप लोग को, ये है इन ऑल इंडिया रेडियो। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन होता है ऑल इंडिया रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो तो हम लोग जो सुनते हैं इंडिया के अंदर, तो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल इंडिया रेडियो के फॉरेन लैंग्वेजेस के कई ब्रांचेस हैं। चाइनीज में है, फ्रेंच में है, जर्मन में है, स्पेनिश में है। सो ऑल इंडिया रेडियो का जो एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन है, इट इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू ब्रॉडकास्ट इन फॉरेन लैंग्वेजेस, और इनको भी अनाउंसर का वैकेंसी, आइदर फुल टाइम अनाउंसर और कैजुअल अनाउंसर या परमानेंट पोजीशंस, ये टाइम टू टाइम इन लोग एडवर्टाइज करते रहते हैं। और जो फॉरेन लैंग्वेज के जो स्पेशलिस्ट हैं, इनका मेन जॉब होता है टू ट्रांसलेट द न्यूज़ इनटू द टारगेट फॉरेन लैंग्वेज एंड रीड इट लाइव ऑन एयर। ठीक है। बिसाइड दिस ऑल इंडिया रेडियो के अलावा many TV channels now they are, हम लोग जो इंडिया के टीवी चैनल है, now they are planning to go global, जैसे जी न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो या आपका जो रिपब्लिक टीवी का प्लेटफॉर्म है, ये सब भी अब धीरे धीरे इन लोग का प्लान ये है कि हम लोग फॉरेन लैंग्वेज में भी टेलीकास्ट स्टार्ट करें, और इनमें भी आने वाले दिनों में बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट का रिक्रूटमेंट होने वाला है, एज न्यूज़ रीडर्स, एज करस्पॉन्डेंट्स। So in future there will be a great demand for students who are experts in different foreign languages. So now coming to the third important aspect of foreign career prospect, जो बहुत सारे जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, वेरियस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नॉन मैनेजरियल कैपेसिटी में दे वांट टू रिक्रूट फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, एंड आफ्टर एवरी एकेडमिक सेशन, मैं खुद देखा हूँ अपने हम लोग की यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मल्टीनेशनल आते हैं टू रिक्रूट फॉरेन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क इन डिफरेंट कैपेसिटीज। सम ऑफ दीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो बहुत फैमिलियर, जिनका नाम आप लोग सबको पता होगा, वो दे आर HP, ओरेकल, विप्रो, अमेजन, जोहो, ओप्पो एक्सेट्रा। इसके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिनका मैं अभी थोड़ा बहुत एग्जांपल दिया हूँ, इसके अलावा भी KPOs जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, वो भी अपना बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग के कैंपस में AMU में जो सब आ रहे हैं, XCVO, वी कस्टमर एक्सेट्रा, और इनका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा खासा होता है। इट वेरीज फ्रॉम 50,000 पर मंथ टू 70,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन दी फॉरेन लैंग्वेज दे रिक्वायर। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज, जैसे आजकल है ना, चाइनीज का सबसे ज्यादा डिमांड है,
So normally our graduates, they end up with a salary of 70,000 per month. और उसके आफ्टर चाइनीज जापानीज है, उसके बाद कोरियन है, उसके बाद मोर और लेस फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, लगभग इन लोग सबका कोई 50,000 45,000 इस बीच में उनका रिक्रूटमेंट होता है। और इसमें भी एमएनसीज में रिक्रूटमेंट में भी योर वो पर्सनल प्रोफिशिएंसी also matters a lot because you know since you start from the baseline zero, आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज पता नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया +2 में and then you start learning new language, पूरा ABC से आपको सिखाया जाता है. So how much effort you put in, how much labor you put in during the next 3 years, that is a very crucial factor in how much proficiency you are going to acquire in the language of your choice. ठीक है, बिकॉज हम लोग जो एडमिशन होता है, इट्स जैसे हम लोग स्कूल में बच्चों को एडमिट कर देते हैं, बच्चे सब कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो बचपन से ही इंग्लिश पढ़ते हुआ आता है, तो बाय द टाइम क्लास 8, 9, 10 पहुंचते ही काफ़ी प्रोफिशिएंसी आ जाता है. लेकिन सिंस यू स्टार्ट एट अ वेरी लेटर स्टेज, आप +2 करने के बाद जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, यू आर ऑलरेडी 18, 17, 18 प्लस हो जाते हैं. ठीक है, तो इसका एक अलग तरीका होता है फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए. इट इज़ वेरी डिफरेंट साइंटिफिक अप्रोच से फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाता है, वेर इन यू हैव लैंग्वेज लैब. तो लैंग्वेज लैब में यू हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 2 to 3 hours every day practicing the new language. ठीक है, so that in 3 years time you become so proficient that you can not only translate, interpret, you can also talk very proficiently in the foreign language of your choice. So इसमें आपका जो ग्रेजुएशन में कितना मेहनत करते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं लैंग्वेज को, that also matters finally where you end up after graduation, in which job you end up, how much salary you are able to negotiate after your graduation. Now the first career option was translator, the second was newsreader in All India Radio and in future in television. The third was language specialist in various multinational corporations. Now coming to the fourth option, career option. All of you have heard about MBA, Master of Business Administration. Now MBA in international business भी एक option है. जैसे हम लोग के AMU में we have a full scale program, Masters in International Business, 2 साल का program after graduation. Now, in this Masters in International Business, you end up specializing in one of the 4 or 5 foreign languages which are very popular right now. कोई एक language में आपको option दिया जाता है, you can specialize in that, either in Chinese or in German or in Spanish. तो international business, जो भी international business, जो companies involved in international business में, they definitely require a person who is proficient in one of the international languages. UN recognized या तो French हो या German हो या Chinese हो या Arabic हो. So foreign language is very useful as far as MBA in international business is concerned. So if you already have a background in one of the foreign languages, आपने BA किया है कोई foreign language में, तो फिर MIB में भी आपको प्रेफरेंस दिया जाता है जब आप अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम के लिए. सो व्हेन यू से दैट यू हैव ऑलरेडी डन ग्रेजुएशन विद फ्रेंच और जर्मन एज अ मेजर, तो यू गेट अ प्रेफरेंस एज फार एज इंटरनेशनल बिजनेस इज कंसर्न. एंड इंटरनेशनल बिजनेस कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज जहाँ इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोग्राम बहुत ल्यूक्रेटिव माना जाता है, दे आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज AMU. अब रिसेंटली इवन JNU हैज स्टार्टेड इंटरनेशनल बिजनेस जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है बिकॉज दे हैव देयर ओन फैकल्टी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस. तो उनके बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस में जो फॉरेन लैंग्वेज के बैकग्राउंड के हैं, आधा सीट्स उनके लिए रिजर्व किया जाता है. तो ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस में आपको अगर इफ यू वांट टू हैव अ हेड स्टार्ट, you need to have a background in foreign languages. Now the fifth career option which is available to graduates or postgraduates of foreign languages
journalist in various national and international newspapers and news channels. So many international newspapers, they जैसे बाहर के कंट्री के जर्मनी के न्यूज़पेपर हैं या स्पेन के हैं या फ्रांस के हैं, all of them have their correspondents based in India. ठीक है, instead of sending a Frenchman to India, they would prefer कि कोई इंडियन मिल जाए जो यहाँ का हिंदी लैंग्वेज भी जानता हो, लोकल कंडीशंस को भी जानता हो, एंड ही नोज द फ्रेंच लैंग्वेज. तो दे प्रिफर सच अ पर्सन ओवर सेंडिंग अ प्योरली अ फ्रेंचमैन, बिकॉज अगर फ्रेंचमैन आएगा चलो तो फ्रेंच में बहुत अच्छा होगा, नो डाउट अबाउट इट, but he will be absolutely zero as far as understanding the local culture is concerned, understanding the local language is concerned. वो कौन समझ सकता है? वही इंडियन ही समझ सकता है जो यहाँ पे पैदा हुआ है, पढ़ा है, लिखा है, plus he knows the language of the country for which he is working as a correspondent. So there are many international news channels, फ्रेंच में है, जर्मन में है, जापानीज में है, चाइनीज में है, स्पेनिश में है, who are looking for local correspondents who know the language of that country, particular country. Local correspondent जो हिंदी भी जानता है, जो मराठी भी जानता है, और plus he either knows French or German or Spanish or Chinese etc. तो उसका reporting will have a lot of depth as compared to a Frenchman or a German who is posted in say Mumbai. वो तो भाई जो बस apparently जो दिखा उसी को रिपोर्टिंग कर दिया. लेकिन आप जो हैं, चूंकि आप वहाँ के लोकल हैं, आप कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, your reportage will have far more depth and it will have far more analysis than the reportage of the Frenchman or a German. एकदम ठीक है. तो इस सेंस में भी learning a foreign language and working as a reporter for international newspapers or international news channels, you have a lot of advantage, and the salary, mind you, in these professions are phenomenal, जो आपको इंडिया में अदर जॉब्स में आप सोच भी नहीं सकते हैं. इतना अच्छा सैलरी इन लोग देते हैं अगर if you know the language and if you are appointed as a reporter or for any news channel or any international newspapers. So this is the fifth career option. Now sixth career option जहाँ पे foreign languages आपको बहुत help कर सकते हैं is Indian Foreign Service. Indian Foreign Service आप लोग सब सुने होंगे, civil services न्यूज़पेपर में ही पढ़ते होंगे. People prepare for IAS, IFS, IRS, ये सब जो हर साल होता है. तकरीबन 1000 people are recruited in the Indian civil services. ठीक है, उसमें इंडियन सिविल सर्विस में एक इंडियन फॉरेन सर्विस भी पार्ट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस है. इंडियन फॉरेन सर्विस में हर साल 15 से 20 लोग रिक्रूट होते हैं, एंड दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव सर्विस, जिसमें जो इंडिया के जो एम्बेसडर होते हैं ना, अल्टीमेटली प्रमोशन होते होते यू ज्वाइन एज थर्ड सेक्रेटरी, promoted to second secretary, first secretary, and finally you end up as India's ambassador to say Syria, to United Kingdom, to France, to Spain, to Germany, etc. ठीक है. तो इंडियन फॉरेन सर्विस में दे ऑलवेज रिक्वायर अ लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, क्योंकि आप जहाँ जिस कंट्री में भी पोस्टेड होंगे वहाँ का आपको लैंग्वेज जानना जरूरी होगा. ठीक है. तो सो इन इंडियन फॉरेन सर्विस before you are posted to any particular country, you are made to learn the language of that country. अगर सपोज अरब वर्ल्ड में पोस्ट होना है तो आपको अरबिक सिखाया जाता है, ये जर्मनी में पोस्ट होना है जर्मन सिखाया जाता है. So but if you already know the language, then you have an advantage over other aspirants, क्योंकि उसमें फिर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 3 महीने का ट्रेनिंग देता है लैंग्वेज का. 3 महीना में गवर्नमेंट ऑल्सो नोज एंड यू ऑल्सो नो दैट 3 महीना में आदमी तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो आने से रहा, थोड़ा बहुत ABC उस कंट्री का लैंग्वेज का आप सीख सकते हैं. बट इफ यू आर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन यू हैव एन एडवांटेज विच अदर कैंडिडेट्स डू नॉट हैव. सो इंडियन फॉरेन सर्विस में ऑलवेज उनको प्रेफरेंस दिया जाता है जो ऑलरेडी लैंग्वेज एक सीख चुके रहते हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके रहते हैं कोई एक पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज में. सो दिस इज
the sixth career option, which is open to language graduates and postgraduates in India. Now finally, जो सेवेंथ करियर ऑप्शन है लैंग्वेज ग्रेजुएट्स के लिए, वो है इन एकेडमिक्स, इन टीचिंग। ये इसका तो बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन है। अब ऐसा हो गया है कि इवन छोटे छोटे शहरों में भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई के स्कूल्स हैं, वो भी अब फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन सीबीएसई के सिलेबस में है। एक फॉरेन जो थर्ड लैंग्वेज है ना, वो मेनी स्कूल्स दे हैव नाउ स्टार्टेड ऑफरिंग दिस फॉरेन लैंग्वेजेस एज वन ऑफ द ऑप्शन इन क्लास 9, 8, 7, 8, 9 एंड 10 तीनों क्लास में ये फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन खुल चुका है। तो यू जस्ट इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर अ बीए इन पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज और उसके बाद आपने बीएड कर लिया है, तो देन यू गेट प्लेंटी ऑफ ऑफर्स स्कूलों में पढ़ाने के लिए। जैसे डीपीएस का चेन है, डीपीएस ऑल इंडिया में, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन लोग फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन फ्रेंच हो या स्पेनिश हो, इन लोग ऑप्शन देते हैं। एंड डीपीएस हैज ऑलवेज बीन रनिंग शॉर्ट ऑफ टीचर्स, क्योंकि उतने ग्रेजुएट इनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो दे डीपीएस ऑल्सो फॉर स्कूल लेवल एजुकेशन दे ऑफर वेरी गुड सैलरीज, ठीक है। एंड अदर देन डीपीएस, ये जो जितने आजकल इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल स्कूल सब खुल रहे हैं, इवन मीडियम साइज टाउन्स में, इन लोग भी they are offering foreign languages and they are on the lookout for people who know French, German, Spanish, etc. तो schools में तो plenty of opportunity है अगर if you are a foreign language graduate। ग्रेजुएशन के आगे आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। But if you want to pursue a career in language proper, तो फिर आपके पास तो यूनिवर्सिटीज में तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप मास्टर्स कर लीजिए, उसके बाद आप रिसर्च कीजिए फॉरेन लैंग्वेज में। अच्छा, मास्टर्स करने के लिए भी मैं ये आपसे आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि जो हर यूनिवर्सिटी, जैसे हम लोग की यूनिवर्सिटी में वी हैव 50 सीट्स एट द बीए लेवल इन ईच लैंग्वेज। फ्रेंच में 50, जर्मन में 50, रशियन में 50, स्पेनिश में 50, चाइनीज में 50, ठीक है। तो हम लोग का 5 लैंग्वेज है। वी रिक्रूट 200 एंड वी गिव एडमिशन टू 250 स्टूडेंट्स एवरी ईयर, ठीक है। एंड आउट ऑफ दिस 50 सीट्स इन ईच लैंग्वेज, तकरीबन 10 लड़कों को वैसे ही ऑफर रहता है स्कॉलरशिप का। जो सपोज स्पेनिश में है लड़के, 50 लड़के हैं बीए फाइनल ईयर में, 50 में से 10 लड़कों के पास तो ऑफर वैसे ही स्पेनिश गवर्नमेंट से रहता है कि आप आ जाइए हमारे जो टॉप 10 है 50 में से, कि इफ यू वांट यू कैन कम एंड डू योर मास्टर्स इन स्पेनिश इन स्पेन, ठीक है। तो इफ ये तो अपने आप में इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑफर। हर लैंग्वेज में लगभग 8-10 स्कॉलरशिप है। तो हम लोग के जो जिनको ऑफर मिलता है वो लड़के तो चले ही जाते हैं। दे डोंट टेक अप जॉब्स हियर इन इंडिया, दे गो एंड डू देयर मास्टर। एंड माइंड यू, मेनी लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश है, इट इज नॉट ओनली स्पेन, आपको मेक्सिको भी स्कॉलरशिप ऑफर करता है, आपको अर्जेंटीना भी स्कॉलरशिप ऑफर करता है, जहाँ जहाँ स्पेनिश लैंग्वेज इज अ नेशनल लैंग्वेज। सिमिलरली फ्रेंच अगर है, ठीक है। नॉट ओनली फ्रांस, मेनी कंट्रीज जैसे कनाडा है, पार्ट ऑफ कनाडा इज फ्रेंच स्पीकिंग, उन लोग भी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग एंड डूइंग योर मास्टर्स in those countries where French or Spanish or German is spoken as the national language. This is one thing. अच्छा, आपने मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स एक बार आप उनकी कंट्री से मास्टर्स कर लेते हैं, तो वहीं पे फिर आपको इफ यू डू वेल इन द मास्टर्स प्रोग्राम, देयर इटसेल्फ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू योर रिसर्च। फिर पीएचडी करने के लिए आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर देते हैं उसी कंट्री में। सो वंस यू डू योर रिसर्च एंड यू कम बैक, देन यू, यहाँ पे तो खैर इंडिया में यूनिवर्सिटी लेवल में वी हैव टू एडवर्टाइज एंड री एडवर्टाइज टू गेट पीपल, क्वालिफाइड पीपल टू फिल वेकेंट पोजीशन। जैसे चाइनीज में अब तक हम लोग अपना पोजीशंस फिल अप नहीं कर पाए, 10 साल हो गया, कि बिकॉज वी आर अनेबल टू फाइंड पीपल कि जो रिसर्च किए हुए हो और चाइनीज पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको जो सपोज जो चाइनीज ग्रेजुएशन के बाद ही इतना पैसा मिलने लगता है कि दे डोंट फील लाइक कंटिन्यूइंग देयर हायर एजुकेशन एनी फर्दर। वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम अपना जॉब पकड़ लेंगे, हमको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। So once you come back with a research degree,
तो यूनिवर्सिटीज में गेटिंग अ जॉब इन फॉरेन लैंग्वेजेस इज वेरी इजी। अगर एक पोजीशन है ना, मुश्किल से 3-4 एप्लीकेंट ही हम लोग को मिल पाते हैं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, मुश्किल से 3-4 एप्लीकेंट मिल पाते हैं जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। एंड टीचिंग जॉब, माइंड यू, इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, या इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर मिल जाए आपको अपॉर्चुनिटी, तो टीचिंग जॉब्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन। एक तो आपको बहुत फ्री टाइम मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन परस्यू योर अदर इंटरेस्ट, हॉबीज, जो भी है, नंबर वन। अच्छा, इतना हाई प्रेशर जॉब नहीं होता है जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव्स जो काम करते हैं, तो दिन रात उनके ऊपर, मैं तो खुद देखा हूँ ना, हम लोग को यूनिवर्सिटी में जो आईटी वाले हैं, जो जॉब में चले जाते हैं एंड देन दे कम बैक एंड कम एंड मीट देयर फॉर्मर टीचर्स, तो वहाँ पे जो प्रेशर रहता है प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में, दैट प्रेशर इज एब्सेंट एज फार एज टीचिंग जॉब्स आर कंसर्न। एंड मॉनेटरीली ऑल्सो टीचिंग जॉब आजकल इंडिया में बहुत अच्छे, मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन इज कोई बुरा नहीं है। पहले एक जमाना था कि टीचिंग जॉब में पीपल वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि मॉनेटरी कंपनसेशन इतना अच्छा नहीं होगा। अब इवन न्यू लेक्चरर जो ज्वाइन करता है कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, he gets a salary package of at 1 लाख पर मंथ, ठीक है। एंड प्रोमोशनल रेवेन्यूज तो खैर बहुत अच्छे हैं टीचिंग में, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव भी नहीं करना पड़ता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट द सेटिस्फैक्शन कि हम पढ़ भी रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, और वी आई कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन माई ओन वे, ठीक है। सो दिस फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, ये जो 8 ऑप्शन में कह रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। या तो आप स्कूल लेवल में पढ़ाइए या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाइए, बोथ लेवल में देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन इजीली गेट अ जॉब विदाउट much effort. So in my opinion, career prospects in foreign languages in India in today's world, ये ऑप्शन आपको परस्यू करना चाहिए। यू कीप इट एज एन ऑप्शन, ठीक है। डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, वॉट एवर यू, आपका जो भी इंटरेस्ट है यू परस्यू। बट मैं कह रहा हूँ इन केस आप यू क्योंकि देखिए मेडिसिन वगैरह नीट वीट का तो मुझे अच्छे से पता है हाउ टफ इट हैज़ बिकम, एंड कितना टाइम टेकिंग होता है ये सब कैरियर परस्यू करके अपने आप को सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। Because in our own family we have few doctors जो मैं देख रहा हूँ, even after putting in 7 years and 8 years MBBS MD वगैरह करने के बाद भी जो कैरियर प्रोस्पेक्ट जो होना चाहिए था इतना लेबर पुट इन करने के बाद, दे आर नॉट एडिक्वेटली कंपनसेटेड। तो उस हिसाब से अगर आप लैंग्वेजेस को एक ऑप्शन मान के चलिएगा, तो आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज फार एज लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज एज एन ऑप्शन इज कंसर्न। Foreign language, by foreign language I mean some of the important language, French, German, Russian, Chinese, Korean, Japanese, Turkish, Arabic, ये सब लैंग्वेजेस। उसके अलावा तो खैर फॉरेन लैंग्वेज बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें अभी इंडिया में उतना प्रॉस्पेक्ट नहीं है। मे भी हो सकता है फ्यूचर में 10 years from now many African languages धीरे धीरे इंटरनेशनल स्टेज पे आके पहुंच जाएं, या मेनी अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस लाइक स्वीडिश, नॉर्वेजियन, ये सब। लेकिन एट प्रेजेंट ये जो पर्टिकुलरली 5 जो यूएन रिकॉग्नाइज, 5 या 6 यूएन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, एंड जापानीज, चाइनीज, कोरियन, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, इनका बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। एंड आई वुड रिकमेंड आवर यंग स्टूडेंट्स to seriously think about pursuing foreign languages as a career option in their future studies. और उसके अलावा तो खैर एएमयू का आप वेबसाइट पे जाइएगा, हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, उस पर क्लिक करके देखिएगा, यू विल कम अक्रॉस द नेम्स ऑफ टीचर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वॉट एवर एडवाइस यू नीड, आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। आप मेल भेज दीजिए, मेरा ईमेल भी वगैरह सब है वो वेबसाइट पे। यू कैन कॉल मी ऑल्सो अप्रोप्रिएट टाइम में, आप कॉल कर दीजिए, पहले एक मैसेज छोड़ दीजिए, फिर बाद में कॉल कर दीजिए। आई एम देयर टू
I am available to help. In fact, it's my passion to help students find a proper direction in their life. Okay, with these words, I now conclude my small lecture and request the organizers to take over. Thank you. Thank you very much, sir. It was very enlightening. Now we will take up the question and answers. Sir, जो पहला question है is 1 year diploma in foreign languages. अच्छा है क्या ये करना? Like, you know, can we get into a career with doing a 1 year diploma? And in which private university will it be better to do it? मैम देखिए, जैसे 1 year diploma है, many private universities, institutes, they offer 1 year diploma. लेकिन if you do it from Allianz Francaise or if you do it from Max Muller, जैसे जर्मन है तो मैक्स मुलर भवन से अगर करें या फ्रेंच है तो आलियांज से करें, इसका ज़्यादा वैल्यू है. अदरवाइज ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह जो 1 year डिप्लोमा देते हैं ना, और यूनिवर्सिटीज में एमिटी का प्रोग्राम है. आई डोंट नो विच यूनिवर्सिटी यू आर टॉकिंग अबाउट, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो उसी यूनिवर्सिटीज को प्रिफर किया जाए जो थोड़ा सा जिनका रेपुटेशन है. वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज यू नो इट्स अ मनी स्पिनर. आप स्टूडेंट से 50,000 1 लाख रुपया फीस ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं हो पाता है. सो ऑलवेज गोइंग फॉर सम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स जो 1 year डिप्लोमा दे रहे हैं, क्योंकि फाइनली ये मार्केट में आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, और 1 year डिप्लोमा शुड बी अ वेरी इंटेंसिव प्रोग्राम, तभी आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे. Thank you, sir. The next question is, should I choose the mass communication as my post graduation instead of PG in foreign language? See, mass communication in post graduation, that's a very good discipline. But if you have mass communication along with, for instance, जैसे पहला क्वेश्चन था 1 year diploma in foreign language plus mass communication, तब आपका मार्केटेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है उससे. Then you know you will be instantly picked up by foreign news channels इंडिया में काम करने के लिए. और जस्ट विथ मास कम्युनिकेशन तो फिर आप यू विल बी कन्फाइंड टू इंडियन न्यूज चैनल्स. इन मेजर केसेस इंडियन न्यूज चैनल में ही आपको मिल पाएगा ब्रेक. थैंक यू सर. सर, वो जो आपने वेबसाइट में बोला था, वो आपका डिटेल्स, दे वांट यू टू रिपीट इट. आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर. सर हाँ, माय वेबसाइट इज AMU. आप चले जाइए, फर्स्ट यू क्लिक ऑन AMU, देन AMU में आप फैकल्टीज में फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, उसमें 13 फैकल्टी, देयर आर 13 फैकल्टीज इन द यूनिवर्सिटी. फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, उसको क्लिक कीजिए. फिर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज क्लिक कीजिए. यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, हम लोग का सारा प्रोग्राम, बल्कि सैंपल क्वेश्चन भी, एंट्रेंस में कैसा क्वेश्चन आता है, एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर. एंड लेट मी टेल, एंट्रेंस एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है मैम. इट्स अगर थोड़ा बच्चा थोड़ा सा भी मेहनत कर लेना, एक महीना 2 महीना तैयारी कर ले, आई थिंक ही विल गेट थ्रू. थैंक यू सर. सर, आपका ईमेल आईडी अगर आप ऐसे ही बोल देंगे तो. अच्छा, हाँ, जे इकबाल, JIQBAL 1234@gmail.com. वो वेबसाइट में मेरा ईमेल आईडी भी है. वो CV पे क्लिक कर दीजिएगा ना, उसमें ईमेल आईडी भी दिख जाएगा, फोन नंबर भी दिख जाएगा. थैंक यू सर. मैं रिपीट करती हूँ पूरे अटेंडीज के लिए. सर का ईमेल आईडी इज jiqbal1234@gmail.com. So the next question is there any added perks of doing masters from international universities based in the country of same language? Currently, I'm pursuing as in comparison to Indian central universities. International universities, my point is, if you can afford to go abroad for your higher studies, well and good. But if you cannot afford, and if you do your graduation in foreign languages from any Indian university, उसके बाद तो आपको स्कॉलरशिप वैसे ही मिल जाएगा मास्टर्स करने के लिए. यू नो, फॉरेन हर कंट्री चाहता है अपना लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए. जैसे इंडिया है, अपना हिंदी लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए इंडिया इज ऑल्सो गिविंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स अब्रॉड.
बाहर बाहर के बच्चे ताकि हिंदी पढ़े। तो वैसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, ऑल ऑफ देम गिव नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स टू गो एंड परस्यू मास्टर्स इन देयर सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड यू हैव डन योर बीए इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, तो आप अगर इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, इंग्लैंड जाके सपोज यू वांट टू डू योर मास्टर्स इन, नॉट इंग्लैंड, फ्रांस जाके आप फ्रेंच में करना चाहें, अगर if you want to do it at your own expense, that will, I think, in 2 years it will come to at least 40 to 50 lakhs. तो अपना पैसा क्यों खर्च करें यार, जब स्कॉलरशिप वो कंट्री सब देने के लिए तैयार हैं। आप ग्रेजुएशन यहीं से कर लो, फिर स्कॉलरशिप लेके यू गो, एंड स्कॉलरशिप का अपना एक वैल्यू है, बिकॉज इट शोज दैट यू आर गुड इन योर स्टडीज, यू हैव बीन गिवन स्कॉलरशिप। आप जब मार्केट में व्हेन यू गो फॉर अ जॉब, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया और जो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, आईआईटी वगैरह से पढ़ के आया है, उसमें ये जो कंपनी जो रिक्रूट करते हैं ना, दे अंडरस्टैंड कि भाई स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, दैट मींस ही मस्ट बी गुड। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा है इसलिए बिकॉज ही कुडंट गेट एडमिशन हियर, तो इसीलिए प्राइवेट में गया है। सो दिस ऑल स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड दिस, कि पहले हमको ट्राई करना है, गवर्नमेंट का मिल जाए, अगर नहीं मिलता है देन ओके, ठीक है, इफ आई कैन अफोर्ड आई विल गो अब्रॉड, एज सिंपल एज दैट। Thank you, sir. Next question is, okay, so he's repeating the question. My question was, BA foreign language student should go for mass communication or MA in foreign language? No, BA फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट तो फॉरेन लैंग्वेज जान गया, ठीक है। BA अगर फॉरेन लैंग्वेज कहीं अच्छे यूनिवर्सिटीज किया है इंडिया में, तो ही इज क्वाइट मतलब प्रोफिशिएंट इन दैट फॉरेन लैंग्वेज, देन मास कम्युनिकेशन कर लेने से तो बहुत अच्छा होगा। he will be, मतलब he will be straddling both the worlds, फॉरेन लैंग्वेज का भी एक्सपर्ट है और मास कम्युनिकेशन का डिग्री है ही मास्टर्स लेवल। सो आफ्टर फॉरेन लैंग्वेज इफ ही इज विलिंग टू गो इन फॉर जर्नलिज्म, तो मास कम्युनिकेशन कर ले, बहुत अच्छा है, इट विल हेल्प हिम ट्रेमेंडसली। Thank you, sir. I hope that is clear to the attendees. So those were all the questions, sir, that I have asked you. Thank you very much, sir. That is all for today. Would you like to give some ending words for them, sir? Thank you, ma'am. Thank you. You people are doing a great job. I am really so happy. I didn't know about AMP, so I have forwarded your letter to all my colleagues. And in fact, we also want to work in this field, how to advance the socially backward communities of India, ताकि उन लोग भी equal footing पे खड़े हो पाए, and they compete with the privileged classes in this country. So very good work you are doing. Yes, sir. Very true, sir. Thank you, sir, for raising the awareness of AMP as well. I thank all the hosts and the attendees for this wonderful session, attending the session. Inshallah, we will have another session very soon coming up. Until then, Khuda Hafiz, Assalamu alaikum. Take care.